Psalm 57. The heading goes like this: Let your glory be over all the earth. Psalm 57 to the choir master, according to do not destroy, a victim of David when he fled from Saul in the cave. So नीचे एक छोटा डब्बा में कुछ बातें लिखा है, वो पढ़ रहा हूँ. This is another individual lament based on an event in David's life, probably 1 Samuel chapter 22 verse 1, but possibly 1 Samuel chapter 24 verse 3. So somebody kindly open these two verses and wait. Psalm 57 arose from Saul's persecution of David. The psalm has two sections, each ended by the refrain 5 and 11, and each mentioning God's steadfast love and faithfulness, verse 3 and 10, drawing on Exodus 3:34-6. Somebody please open 34:6 also. Praveen, open 1 Samuel 22:1. Shambhu 1 Samuel 24:3. तीसरा वचन क्या था? Kamal, Exodus 34 verse 6. The faithful who sing this hymn can identify with David's confidence amid serious dangers. They can look beyond those dangers and see God's honor. ये जो व्यक्ति भजन संगीता पढ़ेगा, दाऊद की साथ खड़े होकर दाऊद की जैसा ही मुसीबत के बीच में एक कॉन्फिडेंस की अनुभव महसूस कर सकता है इस भजन संगीत पढ़ने के समय. So let's read those verses as an evidence of context. मैं कहाँ से पढ़ा, आप देखा? हाँ, वो वचन लेके पढ़ना जिसको बोला. And he came to the sheepfold by the way where there was a cave, and Saul went in to relieve himself. Now David and this man were sitting in the innermost part of the cave. Enough, Praveen. David departed from there and except to the cave to the Adullam, and when his brother and all his father's house heard it, they went down there to him. Okay, Exodus. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, O God, merciful and gracious, slow to anger and abounding steadfast love and faithfulness. When you go through the historical evidence that we have that David and Saul's story, David कहाँ कहाँ भागा था? नाओत करके जगह पे गया, नोप करके जगह पे गया, गात में गया, अदुल्लाम करके एक गुफा केव में गया, देन मिसेब करके जगह पे गया, एक हेरेत करके एक जंगल में गया, देन केला सिप, कल हम पढ़े थे, सिप करके एक जगह पे गया, और ऐसा एक एक जगह पे गया. ये जो भजन संगीता 57 कौन सा गुफा का या केव का कहानी है? This psalm speaks about which cave? और कौन सी जगह पे है अभी? शाऊल से पीछे पड़ा था, कहां पर है करके मैं पूछ रहा हूं. अभी जो वचन बताया वचन खोल के देखा लगभग. शाऊल आया था, वो भाग गया था, इस सब कहानी हम सबको पता है. भजन में कौन सी गुफा का कहानी बताया, नीचे दिए हुए वचन का आगे पीछे पढ़ के बताने के लिए मैंने बोला. नहीं तो ईएसवी बाइबल में वचनों का बीच में हेडिंग होगा, वो हेडिंग में लिखा होगा दाऊद वो समय में कौन सी जगह पे था. फाइंड इट आउट. इसलिए मैंने कुछ कुछ जगहों का नाम पढ़ा अभी. 1 Samuel 24 verse 3 के अनुसार. And David went from there to Mizpeh of Moab. कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? 22:3 जगह का नाम. देन 24
24 में अब्दुल्ला में है। अध्याय 24 का वहां हेडिंग पढ़ के देखना। सो भजन संगीता 57 का कॉन्टेक्स्ट इन दोनों वचनों में हमको मिलता है। शायद 22 का एक्सपीरियंस होगा, नहीं तो 24 का कॉन्टेक्स्ट होगा। सो भजन संगीता 57, Psalm number 57 has same kind of context, but maybe 1 Samuel chapter 22 or 24. समझ आया? If you want to write down the name, read that chapter heading part and down 2-3 verses, you will find out the jagah. Hebrew Bible attributed kingship or the authorship to King David, and this is a psalm of lament and trust in God during the time of personal distress. So he is going through a personal time of distress in his life. At that time, ये भजन संगीता का शुरुआत, उद्भव या क्रिएशन हुआ। समझ आया? So same kind of context, author is David, but 1 Samuel chapter 22 अदुल्लाम का गुफा या केव का कहानी होगा, नहीं तो एंगड़ी करके जगह पे उन्होंने गया था। 24 में है ना? 24 में, मैं 24 का बता रहा हूँ। 24 का ENGDI एक जगह का नाम वहां लिखा है। सो ये 24 का अनुभव होगा या 22 का, बट द हेडिंग, द सुपरस्क्रिप्शन डायरेक्टली सेज अस इन फ्रॉम विच प्लेस ही रोट दिस सॉन्ग, और कौन सा अनुभव से भजन संगीत का शुरू हुआ। एक केव का अंदर शाउल से डर के बैठ रहा था, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ साउल ही वाज हाइडिंग हिमसेल्फ इन ए केव। रीड वर्स 1 to 3. Be merciful to me, O Lord, O God. Be merciful to me, for in you my soul. Take refuge in the shadow of your wings. So this psalm is connected with Psalm number 58, 59 and 75 because of the theme, because of the heading, do not destroy, al-tashet, which appears in other psalms like 58, 59, 75. Do not destroy करके वहां बताया। जीवन का ऐसे एक अनुभव में है, परमेश्वर आप मुझे शत्रु के हाथों में नहीं देना, आप मुझे संभालना। सो ये गीत गाने का समय ऐसे एक फीलिंग, ऐसे एक इमोशन से गाना है, परमेश्वर मुझे जरूर मदद करना। गॉड यू हैव टू हेल्प मी, यू शुड हेल्प मी, डू नॉट डिस्ट्रॉय माई लाइफ। वाई? बिकॉज द सामिस्ट नोस वेरी वेल, परमेश्वर उनकी मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में काम। सो ही इज प्रेइंग, डू नॉट डिस्ट्रॉय। You can connect this psalm and this experience with the life and ministry of Jesus Christ. यीशु मसीह भी एक छोटा सा प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना था? Jesus also prayed something in the same way. अगर हो सका तो इस कटोरा मेरे जीवन से, तुरंत प्रार्थना क्या किया? Not my will. So same kind of situation here David is going through. समझ आया नहीं आया? ऐसा कनेक्शन आया? यीशु मसीह भी ऐसा एक प्रार्थना, एक इंसान होने के नाते कितना भी भरोसा रखा तो भी एक जगह पर हम ऐसा वाला बात है मुंह से आएगा, लेकिन तुरंत समझते हुए मेरी इच्छा नहीं, that you can understand if you read verse 6 and 7. So division, verses 1 to 5, a plea for mercy and protection. A plea for mercy and protection. पहली वचन पढ़िए, हिंदी। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। अनुग्रह या मर्सी का ट्रांसलेशन अनुग्रह, दया या अनुग्रह? दया कैसा अनुग्रह खाता है? Verses 6 to 11, a declaration of trust and praise.
So the tuning, the way of writing is same as it is 56. It starts with prayer, cry. It ends by thanksgiving or praise. Who is the author? Which context? It uses literary features like imagery, then metaphor. लायन के बारे में कुछ बताया होगा. कौन सा वचन? 4. So imagery, metaphor is used in this psalm. Themes: divine protection and refuge. Divine protection and refuge. We can connect this psalm, this theme with this title with Psalm number 46 and Psalm number 91. भजन संहिता 46 और भजन संहिता 91 से कनेक्ट करते हुए और टाइटल से आप और प्रचार कर सकता है. Psalm number 46 and 91. Faith in the midst of persecution. Faith in the midst of persecution. दानियल ऐसा बाइबल में लिख के गया तो लास्ट आपको भी पढ़ना नहीं आएगा, कोई का फायदा भी नहीं होगा. लास्ट आपको भी पढ़ना नहीं आएगा, क्योंकि वो बाइबल का पेपर ऐसा है, थोड़ी दिन के बाद वो थोड़ा 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 मोटा होते जाएगा, हर एक अक्षर मिलते जाएगा. ये कागज लेकर लिखने के लिए दिक्कत क्या है? वहां मत लिखो, वो थोड़ी दिन में ऐसा ऐसा फैल गया तो फिर पूरा काला काला होकर वचन भी दिखाने देगा. पॉइंट नंबर 3, गॉड सोवर्निटी एंड ग्लोरी. सर्वाधिकार और परमेश्वर का महिमा. लास्ट वन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैमेंट टू प्रेज. रोने से स्तुति तक एक बहुत बड़ा बदलाव. सो आवर prayers should be a transformation from lament to praise. We can give a wonderful sermon on this topic. हमारा प्रार्थना पुकार से स्तुति का गीत जैसा बदलावट होना है, बदलना है. I think in New Testament somewhere it is written, ये मिला है करके धन्यवाद बोलते हुए प्रार्थना करना करके वचन है. When you pray, believe that you have received it and give thanks to the Lord. Where? मार्क 11 का 24. पक्का? I think in our first batch we had one fellow, रायचंद. वो ऐसा वचन को याद रखते थे, कभी कभी शर्म आते थे. वो हर एक वचन को याद रखते हैं बंदा, रायचंद. शरीन सर भी शायद ऐसे वाला एक इंसान है. क्लास लेने के समय समझ आया होगा, सोचने का भी जरूरत नहीं होगा, ठीक ये वचन इधर करके बता देता है. जॉन सर भी, दैट आई डोंट नो. सो आवर प्रेयर्स शुड ट्रांसफॉर्म लैमेंटेशन टू प्रेज. You can compare this psalm with Psalm number 57, 56, then Psalm number 8, Psalm number 108. So you can compare this psalm with Psalm number 56, Psalm number 8 and Psalm number 108.
historical interpretation, as we already know the context. But when we take this psalm and when we pray or when we sing, as it is written in the Psalm number 57 or 57 है ना 57, do not destroy. Our feeling should be, परमेश्वर मैं इस मुसीबत में हूँ, मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करना, लेकिन if you wish to do this in my life, you have all rights to do. समझ रहे नहीं है कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ना है. दाऊद ऐसा एक सिचुएशन में है, ऐसा प्रार्थना भी किया है. ही इज ऑल्सो प्रेइंग टू गॉड, लॉर्ड डू नॉट डिस्ट्रॉय मी, मुझे शत्रु के हाथों में नहीं. बिकॉज डेविड इज वेरी वेल नोन टू दिस मैटर. इफ गॉड्स पीपल डू समथिंग रॉन्ग, गॉड हिमसेल्फ विल गिव हिज पीपल टू द हैंड्स ऑफ एनिमी. समझ ही नहीं आया. उदाहरण दूसरा बंधुआई में जाने का रीजन क्या था? परमेश्वर का लोग ये चुने हुए लोग ये गलती किया, परमेश्वर ही बबीलोन का राजा लोगों को इधर लेके आकर सब कुछ. सच में झूठ बोल रहे हैं, सही है. अगर इतिहास पता है तो ऐसा ही है ना. परमेश्वर ही बताया मैंने तुम लोगों को शत्रु के हाथों में क्यों, कुछ बातें सिखाने के लिए. कितना साल. So David knows this matter very well, so he's praying, God, do not destroy me, but you have to protect me. But if it is your will to destroy me, you can do that. Exegetical analysis. 1, 2, 3. Cry for mercy and confidence in God's faithfulness. परमेश्वर विश्वासी योगी है और फेथफुल है, सो प्रार्थना भी है एंड वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस भी है. वर्सेस 1 to 3. 4 to 5 एनिमीज के बारे में एक विवरण दिया है. एनिमीज के बारे में विवरण दिया, साथ ही साथ ये भी बताया ये बातों को ऊपर परमेश्वर महिमा आपको ही मिलेगा. वो बात भी मुझे विश्वास है. मतलब शत्रु लोग कितना भी हमको सताएगा, अंत में महिमा किसको मिलेगा? यू कैन कनेक्ट दिस विद द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इन योर विलेज. मंदिर को तोड़ा जाएगा, मसीह लोगों को मारपीट कर रहा है, लेकिन इन द एंड महिमा किसको मिलेगा? इन विच वे, कैसा कौन सी तरीके में बातें हम बता सकता है? क्योंकि हमारा बाइबल में ही लिखा है हमको सताने के लिए लोग, मतलब मेरा परमेश्वर बोले हुए बात ही पूरा हो रहा है. महिमा किसको है? द वर्ड विच माई गॉड वॉज ऑलरेडी स्पोकन, दैट इज टेकिंग प्लेस इवन व्हेन अदर्स आर परसिक्यूटिंग अस. सो द ग्लोरी एंड ऑनर बिलोंग्स टू गॉड. समझ आया नहीं आया? पक्का. 3. डिलीवरेंस एंड रिन्यूड प्रेस. बचाया है परमेश्वर ने एंड और स्तुति का बातों को और एक बार दोहरा रहा है, मतलब वंस अगेन रिपीटिंग. वहां एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा है. म्यूजिक चलने वाला लोग पढ़ के देखिए. वचनाट, हार्प एंड लायर. क्या है? वीणा. हार्प वो होगा फ्लूट. सारंगी क्या है? दिस इज हार्प, दिस इज लायर आई थिंक. देखो, फर्स्ट वन हार्प, हेडिंग के अनुसार फर्स्ट वन हार्प, सेकंड वन लायर. ऐसा गाते थे. ये आजकल भी है. देखो पैंट शर्ट पहनने वाला लोग भी इसको लेके बैठा है. शायद जिसको गिटार आता है ये सब कुछ आता है शायद. हाँ, मतलब गिटार आने वाला लोगों को उसको पकड़ना तो आता है ना, इसको तो दबाने की जरूरत नहीं है, ऐसा करना ही है. उंगली का दर्द नहीं होगा, गिटार तो दबा के रखना है. Psalm 57 contributes significantly to the
theology of the Psalter, it combines the tension between human vulnerability and divine faithfulness. So one of the important themes that we can discuss from this psalm is, or one of the important themes that we can discuss from Psalm number 56 and 57, human vulnerability and divine faithfulness. इंसान कितना भी संदेह लेकर बैठा तो भी परमेश्वर विश्वासी लोग ही है, वो जरूर हमारा जीवन में जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करेगा. What was the promise that was in the life of David? मैं तुझे क्या बनाऊंगा? राजा. फिर बनाया नहीं बनाया? जब से लेकर दाऊद ने पक्का सिंहासन में बैठने का पोजीशन टाइम मिला, कौन सी संदर्भ से लेकर, फ्रॉम विच मोमेंट डेविड बिकेम ओरिजिनली एक्चुअली पक्का किंग, और कैसे बताना मुझे पता नहीं. जब तक साउल का नहीं हो पाया, जब साउल मर गया, when Saul died officially without any fear, without any problem, who became king? Theological unity. When you read this kind of this psalm, you can see two things very, very important we have to keep in our mind. It starts with cry and it ends with confidence. 2 C's or 3 C's. 3 C क्या है? Cry, complain, confidence. Cry, complain, confidence. So whenever you read this kind of a psalm, you should remember 3 C's. Cry, complain, confidence. पहला वाला भजन संगीत में ऐसा था, प्रार्थना, कॉन्फिडेंस, प्रार्थना, कॉन्फिडेंस. ये भजन संगीत अभी सेम है. एक बार लैमेंटेशन और या क्राई, वीपिंग, तुरंत कॉन्फिडेंस, फिर क्राइंग, फिर कॉन्फिडेंस. सो 3 C's in a theological way, in a literary unity. When you preach, we can see 3 C's in this psalm: cry, complain, confidence. समझ है नहीं आया? पक्का? और 3 C's of life. You can give a heading for your sermon. The 3 C's of your life. So today I will like to explain about what are these 3 C's. First one, when you come to this earth, हम रोएगा. बच्चा है था ना तब भी रोएगा. But when you die, have this confidence, your soul will be with, आत्मा कहाँ होगा? You can give a good sermon for Christmas. It is not only the birth, it is also death. Death with confidence that when I die, I will be with my God. If you have that assurance, that confidence, you can die even today. So that is an application I have already told, because next topic is application. So one application I told indirectly or directly. 3 C's of life: cry, complain, and confidence. When I came to this earth, I cried. And when I am today living, for many reasons I am giving complaints to God. But my aim is, when I die, I should die with a confidence. I have fulfilled His purpose that He appointed in my life. So एंड ऑफ माई लाइफ. समझ आया नहीं आया? जब जन्म हुआ था रोते हुए आया था, उसके बाद बहुत चीजों के बारे में हम परमेश्वर से मैं कंप्लेन करता हूँ, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, काइंड ऑफ कंप्लेंट्स. एंड इन द एंड माई एम इज आई शुड डाई विथ अ कॉन्फिडेंस. इफ आई डाई, कहाँ जाना है? So you can give a good sermon. So that is my application. You can write 2 more application first. संगे देवता, संगे डोरजी.